मॉनसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने सरकार के सामने मुद्दे उठाए हैं। अग्निपथ योजना पर विपक्षी दलों ने सरकार के सामने मुद्दा उठाया है। मॉनसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, क्योंकि सर्वदलीय बैठक चल रही थी और विपक्ष ने मीटिंग में कई मुद्दों को उठाया है। जी हां, जानकारी मिल रही है महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को भी उठाया गया है विपक्ष की तरफ से। Leader of the Rajya Sabha is present and Parliamentary Affairs Ministry is present, and my both colleagues are there, and we have given so much importance to that. They are trying to unnecessarily create an issue, and I would like to ask the Congress party, which is trying to make an issue which is a non-issue, how many times previously when they were ruling and all these people were there, Mr. Kharge to Jairam Ramesh, everybody was there in Manmohan Singh's cabinet. How many times they have attended? How many times Manmohan Singh ji came to all party meetings? And at the end, for 6 to 7 years, in all the session before the meeting which regularly we have, for that meeting, Honorable Narendra Modi ji as the Prime Minister, he has attended. Even today also, Shri Rajnath Singh, the most senior cabinet colleague of Shri Narendra Modi ji cabinet, has attended. So they are trying to make issue out of the non-issue, because since they do not have any issues to raise, they are talking all these things. हिंदी में ये करें। आप करो। No. See, Rajnath Singh ji has very categorically said that under the rules, and I have also made clear, under the rules and the procedure, for whichever the issue, permission is given by the chairman and the speaker, we are ready, open for the discussion. Including for Agnipath, you are open for discussion? We are open for discussion. There is no issue on that. So 32. Around 45 parties, 36 parties attended, and almost 36 leaders, they put forth their views, and I am thankful to them for having accepted our invitation and participated, and they have given their suggestions also, and they have demanded for some of the issues to be discussed. कि आप 32 बिल दिया है, उसमें 14 कौन सा लेते हैं हमको पता नहीं है, ये भी मुझे सुनाई पड़ा। उधर भी कुछ लोग कह रहे थे मुझे। मैं कहता हूँ नेक्स्ट टाइम से हम बिल, लिस्ट ऑफ बिल नहीं देते, तब आते हैं हम देते हैं। हम जो इंडिकेट हुआ है वो दिया है, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड रहिए, आपका कंस्ट्रक्टिव सजेशन हमको दे दीजिए, बिकॉज दिस मोदी गवर्नमेंट इज ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एंड वी आर मोस्ट, आवर पार्टी इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक. Leader is elected, not selected. Party president is elected, not selected. The party people who are selecting their president and the prime minister, including the from their own one single family, they are talking of all these things, and we are giving the list in advance. Please let them be prepared. If you don't want to even that list, we are ready to withdraw that. Out of 32, 14 are immediately ready, and in order of preference we have given. संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे। मानसून सत्र से पहले ये जो बैठक चल रही थी सर्वदलीय बैठक, वो खत्म हो चुकी है। 18 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रही है और इस पर और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हिमांशु मिश्रा, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, इस बैठक का लब्बो-लुबाद क्या कुछ था और क्या निकला? विपक्ष ने क्या मांगे रखी और क्या कुछ और जानकारी? देखिए, विपक्ष का साफ साफ कहना है जितने बिल जो है इस मानसून सत्र के अंदर सरकार लाना चाहती है, उनको पास कराना चाहती है, वो बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष भी कई मुद्दों के ऊपर चर्चा चाहता है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, अग्नि इशू हो, साथ भारत की सीमा के अंदर चाइना की घुसपैठ हो, उन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष चर्चा चाहता है। विपक्ष ये कह रहा है कि एक दिन राष्ट्रपति के चुनाव की वोटिंग के लिए और एक दिन काउंटिंग के लिए, तो उसके बाद जो समय बचेगा वो बहुत ही कम समय बचेगा। ऐसे में इतने बिल कैसे पास होंगे? और जो विपक्ष चाहता है, जो तत्कालीन मुद्दे हैं उनको विपक्ष चाहता है चर्चा कराई जाए। तो विपक्ष का ये कहना है कि सरकार ने जो है मानसून सत्र का जो समय है, जो दिन रखे हैं, वो बहुत ही कम है, और इसीलिए वो आज फिर से एक बार जो है विपक्ष
अपनी बैठक करेगा सभी पार्टियों के साथ और उसके बाद तय करेगा किन किन मुद्दों को लेकर जो है आगे बढ़ना है, क्योंकि विपक्ष भी एक चीज बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि कुछ ही मुद्दों को लेकर चर्चा कराई जा सकती है और किन नियमों के तहत चर्चा की मांग की जाएगी, ये सारी चीजें विपक्ष अपनी अगली बैठक के अंदर यानी कि आज दोपहर 3 बजे के बाद जो बैठक होगी उसके अंदर तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है, विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने की पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है और इसीलिए संसदीय कार्यमंत्री की तरफ से जो बैठक बुलाई गई थी ऑल पार्टी, उसके अंदर विपक्ष ने साफ कर दिया है कि समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है और ऐसे में सरकार को तय करना है कि किन महत्वपूर्ण बिलों को लेके आना है और विपक्ष की मांग जो है के ऊपर चर्चा हो, वो चर्चा भी इस संसद सत्र के अंदर होनी चाहिए। ठीक है मंशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर अपडेट दर्शकों तक साझा करने के लिए। देखिए, बैठक में 45 दलों को बुलाया गया था, प्रहलाद जोशी ने कहा, लेकिन 36 दलों के नेता ही वहां पर पहुंचे और इस बीच क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रिया रही, आपको हम सुनवाएंगे भी। जम्मू कश्मीर का विषय हो, कश्मीरी पंडितों का हो और जो कांग्रेस लीडर्स पे, अपोजिशन लीडरों पे जो हमला हो रहा है उसके बारे में हो, इन सारी चीजों को लेकर हम चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ हमको चर्चा के लिए 14 दिन मिलेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम सरकार के बिजनेस को कोऑपरेट करेंगे, लेकिन इन सारे मुद्दों को वो कैसा देखेंगे, कितना टाइम देंगे, हमको ये देखना है।